तो क्या हुआ? जीएस पेपर 3 इज आउट। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है मेंस 2024? कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 और 26, यू आल्सो लेट मी नो, ताकि मुझे समझ आए कि सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वेयर यू गाइज आर स्टैंडिंग राइट नाउ, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन टेक क्लासेस इन द कमिंग days. Now, this class is specifically to quickly analyze the entire GS paper 3. Yes, सोर्स एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस भी मैं करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जोड़कर इस साल के क्वेश्चन पेपर से भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट वो आने वाले टाइम में, इन द कमिंग डेज आई विल डू दैट. But why this class is created? So that GS paper 3, which is such a diverse paper, and to majority of the students it is very dreaded. When I also used to prepare for UPSC, मेरे लिए भी बहुत ही dreaded paper होता था, because it has economy, science and tech, environment, disaster management, internal security, बिल्कुल इधर इधर उधर उधर सारे सब्जेक्ट्स कवर करके यहाँ पर डाल दिए. एंड दो सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो क्रूशल, है ना. GS2, GS1 फिर भी it's manageable, but paper 3, hats off to everyone who have written this year's mains 2024, because lengthy paper आया था. I will not say it was very tough. अगेन मुझे पता है आप बोलोगे मैम आराम से एनालाइज करने में तो इजी लगता है. मैं बोल ही नहीं रही इजी है, मैं ये बोल रही हूँ कि टफनेस लेवल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ी कम थी, बट लेंदी बहुत था. Even if the questions were doable, it was so lengthy कि hats off to everyone who have attempted this year. बहुत लेंदी था. अब आप बोलोगे लेंदी मतलब क्या? लेंदी तो होते हैं, बट आई शो यू हाउ लेंदी दिस पेपर वॉज एंड वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लेंदी मीन्स. लेंदी मतलब ये होता है कि in one question there are different aspects to cover, and to uncover those different aspects we have to brainstorm also, and one question के लिए 7.5 minute ही हमारे पास होते हैं. So yes, it was lengthy. ठीक है. So I'll be sharing everything with you कि what was the pattern this year which was followed, which questions were repeated. Inflation तो UPSC का favorite है. Every year in prelims and mains inflation तो आता ही है. तो inflation and UPSC are real brother and sisters, है ना. So inflation का question was expected. There was many such questions which were expected and which were there. Previous year questions का heavy इसमें आप बोलोगे एसेंस देखने को मिला है. Heavy essence, I'll show you how. And since the last 50 days now, we were running daily mains question answer writing initiative, free initiative on our Telegram channel. वहाँ से भी काफ़ी topics आए हैं. So that shows कि we were very consistent and disciplined in understanding कि what UPSC needs to test in an aspirant when it comes to this exam. Let's get started. UPSC Mains 2024 GS Paper 3. It comprises of economy, science and tech, environment and ecology, internal security and disaster management. Disaster management has linkages with GS Paper 1 also, because we have geography over there. है ना? Science and technology has linkages with GS Paper 2 also, because governance में e-governance आ गया है. Right? Environment ecology has linkages with GS Paper 1, again geography. इंटरनल सिक्योरिटी हैज linkages with GS पेपर 2 also, because गवर्नेंस की बात आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. यस, ये है ऐसा, इंटरलिंकेजेस देखे जाते हैं, बट स्टिल आई वुड से पेपर 3 इज वन ऑफ दोज पेपर्स which seems quite lengthy. Why? Because all these subjects are very very technical in nature, whether it is security, whether it is science and tech, whether it is environment and ecology, economy और disaster management, defense technology भी आ जाती है यहाँ पर. तो all these subjects they are very very practical and very very technical in nature. यहाँ पर सिर्फ रट्टे से भी काम नहीं चलेगा. यहाँ पर you have to improve and enhance your memorization also, plus your understanding, conceptual understanding also, specifically in economy, जिसका weightage हमेशा हर साल high रहता है. This year also the weightage was very high. Overall my view would be that this year's question paper was lengthy. Each and every part in the question needed brainstorming, quick brainstorming. But ये होता कैसे है? How can you do on spot brainstorming on a particular question? You can do it with practice. अगर आप daily practice कर रहे हो, then there is no force on earth which can stop you, right? But the paper was quite doable, I would say.
because if you have gone through the last few years, specifically last 4 years previous year question papers, this paper would seem doable to you. I'll also show you that with proof. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बात कर रही हूँ, प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, ठीक है? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ह्यूज रोल प्ले हुआ है। इस बार अगर हम पैटर्न देखेंगे ना, तो क्या पैटर्न देखने को मिला है? Heavy inclination towards current affairs, heavy inclination towards previous year question papers. This is the pattern which has been noticed in this year so far. Paper 1, paper 2, paper 3 and essay paper अगर आप देखो तो current affairs पे inclination थोड़ा ज़्यादा ही रहा है, paper 3 में तो काफ़ी रहा है। I'll also show you another important observation. In the entire paper, when we do analysis of previous year question paper or the current question paper analysis, में आपको ये देखना है कि that question paper has how many subjects, and then from each subject how many questions have been asked. Because if you know the number of questions, accordingly आप prioritize कर सकते हो. If you are weak in economy and you can see that more questions were asked from economy, since day one of your preparation you can prioritize your understanding of economy, right? ऐसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो इकोनॉमी से टोटल 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एग्रीकल्चर से टोटल 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, फ्रॉम एनवायरनमेंट 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड 4 क्वेश्चंस, डिजास्टर मैनेजमेंट से हमेशा ये होता है क्वेश्चंस आर वेरी लेस, दिस टाइम आल्सो 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एंड इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चंस. सो यू कैन सी दैट फर्स्ट रैंक पे हमारे इकोनॉमी आ ही जाता है, विच इज दी सेम स्टेटस एवरी ईयर. बट हमारे सेकंड रैंक पे आ रहे हैं साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी. एग्रीकल्चर वैसे आपका सेकंड रैंक पे आता था एवरी ईयर, बट नाउ एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पोजीशन नीचे हो गया है. एंड देन वी हैव एनवायरनमेंट. आप देखोगे एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मेंस में क्वेश्चंस कम हो जाते हैं. अगेन इंटरलिंकेज बिटवीन प्री एंड मेंस यू कैन सी, राइट? सो दिस वाज द इंटायर मतलब फीडबैक फ्रॉम माय एंड. नाउ लेट मी शो यू विद प्रूफ कि why am I saying कि previous year questions, daily mains questions, current affairs, they played a huge role in this year's question paper. As you can see on the screen, I have color coded the entire paper. कलर कोडिंग से क्या होगा कि आप लोगों के आंखों के सामने हाईलाइट आ जाएंगे यूपीएससी के सोचने के तरीके के, ठीक है? एंड एट द एंड वील सॉल्व वन क्वेश्चन ऑल्सो, जैसे कि हम हर एनालिसिस सेशन में करते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन यू कैन सी दैट वी हैव 3 colors. We have the green color, red color and we have the yellow color. The red color specifically is for that question which has been taken up from a viral topic. Do you remember that once in prelims there was a question asked on Gucci, right? Gucci का एक फ्रूट होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था because it was a viral topic on Instagram and Twitter, and देखो क्वेश्चन भी आ गया था. Do you remember few weeks ago and even few months ago there was a prediction which was going on, just like 2012 में हुई थी prediction, right? क्या prediction थी कि there is an asteroid which is coming up with huge speed and it is going to hit the planet Earth and then सब खत्म हो जाएगा. So in 2012 I remember I panicked a lot. I was in school at that time और मैंने काफ़ी panic किया था वो prediction सुनने के बाद. And the same thing happened this year also. There was a prediction which was doing the rounds on social media since last few months, that there are twin asteroids which are coming towards Earth and they will hit the planet and the planet will blast. एंड टू माई सरप्राइज यूपीएससी ऐसे वायरल न्यूज को जरूर देखता है. ये देखो, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ. आई लिटरली लाफ्ड व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन. मतलब हुआ तो कुछ नहीं, ठीक है, सितंबर में ही आना था, बट द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन, फाइंड द ह्यूमर इन द क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी साइड. हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ and what strategies have been developed to prevent these kind of catastrophe. I remember there were several memes on different social media platforms wherein either Khali is stopping the asteroid or our honorable prime minister is stopping the asteroid, right? When people are asking कि भाई इसरो एंड नासा से पूछ रहे हैं क्यों नहीं आया एस्ट्रॉइड, कहाँ पर है एस्ट्रॉइड. तो इस तरीके के मीम्स भी काफी बन रहे थे. एंड सी, देखा क्वेश्चन, देखा मी वायरल टॉपिक और आ गया क्वेश्चन. अब इसके अंदर मैं आपको एक क्विक तरीका समझाऊंगी कि हाउ यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट आई ऑलवेज टीच माय स्टूडेंट्स टू डू वन थिंग. वो एक चीज क्या है? ब्रेक द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Second part of the question is saying
How real is the threat of them causing extinction of life? What is the uh, major evidence or proof supporting this, or kitna real hai? Fact check karo, basically they are asking you to fact check. Then third part of the question is saying what strategies have been developed to prevent such a catastrophe. तो कितने पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के? इट्स अ 15 मार्कर क्वेश्चन, तो वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. Now we know the IBC approach: introduction, body, conclusion. So in the body of the answer we have to answer in 3 parts. इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट पार्ट को लेकर जा सकते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? और this there is another alternative to answering this question. Instead of explaining the first part of the question in the introduction, you can simply give a context also कि it was a news, so that your awareness can be, the examiner can know that you are aware of what is going around. तो दो alternatives है. इधर आप context दो कि क्यों ये एस्ट्रॉइड्स न्यूज में रहे हैं, और यू कैन आंसर स्ट्रेट अवे कि व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स. आप एस्ट्रॉइड्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हो. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ. हियर वी हैव गुड एग्जांपल्स. 2012 की अब्बा याद है आप लोगों को, राइट? So let's solve this question so that we can also live understand कि how to not just divide the question in parts but also how to answer each part. अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आई विल ऑल्सो शेयर इट ऑन आर टेलीग्राम चैनल, बट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड इन IBC अप्रोच. अब मैंने एक माइंड मैप बना दिया आप लोगों के लिए. क्रिएटेड अ माइंड मैप्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है. फर्स्ट पार्ट, what are asteroids? We will give a context. What context? कि why it has been in news also. अगर न्यूज में है तो आपको बताना भी चाहिए कि क्यों न्यूज में है. If you know it was in news because ISRO is planning to study asteroids, because there is a threat of asteroids hitting the planets, right? So we need to study their pattern, in which orbits are they found, how harmful they are. And we have proofs also. Extinction of dinosaur is one such massive proof. The Chelyabinsk meteor explosion is one such massive proof. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया that ISRO in collaboration with other space agencies, it is trying to study asteroid. And then we will explain what exactly is an asteroid. It's a small rocky body, मार्स और जुपिटर के बेल्ट के बीच में पाई जाती है. If you want आप उसकी डायग्राम भी बना सकते हो. And it basically orbits the sun. ठीक है, सन को ऑर्बिट करता है. Now the second part of the question. How real is the threat of them causing extinction of life? How real is it? Is it even real? Yes, we have proofs. We have recent studies going on. Science journal में ये publish भी हुआ था. 66 million years ago, extinction of dinosaurs was caused with an asteroid जो Jupiter belt के beyond पाया जाता है. राइट, तो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. दी चेलियाबिंस्क मीटियोर एक्सप्लोजन एक एग्जाम्पल हो गया ना. दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. 2013 में आपको याद हो, एन एस्ट्रॉइड एक्सप्लोडेड अबाउट 30 किलोमीटर अबव अ रशियन टाउन. राइट, ह्यूज एनर्जी रिलीज हुई थी. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ दिस वॉज इन न्यूज. ये तो अभी रिसेंट 2013 का न्यूज है, तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट याद रख हो गया, आपको समझ आ गया. Now, another huge potential of an asteroid causing extinction of life is changing orbits. If they change their orbits, because Jupiter as a planet, it has a massive gravity, है ना. तो the orbits of asteroid it can be changed, because मार्स और जुपिटर के बेल्ट में ही पाया जाता है ना. जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से इनका ऑर्बिट चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है. दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता है कि what strategies have been developed to prevent such catastrophe. First strategy is the planetary defense, the conferences which takes place between international countries and nations, right? तो ये one example हो गया, to understand, to share the knowledge on asteroids. Then early warning system, EWS का मतलब होता है early warning system. ठीक है. Now the next is gravity tractor. ये बहुत important है. Now a spacecraft could hover near an asteroid for an extended period of time using its gravitational pull to slow down the speed of the asteroid, or to slow down the path of the asteroid. That is gravity tractor which can be used. Then nuclear disruption can be used. In extreme cases, a nuclear device could be detonated near an asteroid. Detonated near an asteroid to either deflect or disrupt it.
या उसके पाथ को चेंज करने के लिए. देन नेक्स्ट इज काइनेटिक इम्पैक्टर. काइनेटिक इम्पैक्टर, दिस इन्वॉल्व्स, राइट इट डाउन, सेंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट टू collide with an asteroid to change its trajectory if it is coming towards our earth. ठीक है, यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट. स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफे, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड आल्सो, एंड दिस इज हाउ यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, मैंने क्या बताया आपको, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को? आई विल अगेन टेल यू. यहां पर देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी क्वेश्चन इज डिवाइड द क्वेश्चन. ठीक है, पहला हो जाएगा डिवाइड द क्वेश्चन. सेकेंड एस्पेक्ट इज after dividing the question use the IBC approach. Third aspect is कि after using the IBC approach now you have to structure. आपको structure में क्या करना है कि context देना है या definition से start करना है. Do you have the context? Context means do you know about the current affair topic related to this topic, और current awareness है इस topic के ऊपर? Yes. So context दो यहाँ पर, नहीं है तो definition से start करो and then you can write your answer. ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लाइव सॉल्व करके भी चलो दिखा ही दिया आप लोगों को. ऑल राइट, नाउ आई टोल्ड यू दैट दिस वाज वन ऑफ द वायरल क्वेश्चन. जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके हमारे DMQ, दैट इज डेली मेंस, जो हम क्वेश्चंस देते हैं, इनिशिएटिव रन कर रहे हैं टेलीग्राम पे, वहां से डायरेक्टली टॉपिक से आए हैं. फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टॉपिक हो गया. नाउ आई विल आल्सो टेल यू, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टॉपिक इज आल्सो आस्क्ड इन PYQs अ लॉट ऑफ टाइम, बोथ प्री एंड मेंस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज, इसके अंदर आपको याद है RFID प्रोसेस भी यूज होता है. ओके, तो ये करंट से उठाया गया है, करंट. एंड यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इन्फ्लेशन तो UPSC का फेवरेट है. अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन अगेन इट वाज न्यूज, फूड इन्फ्लेशन ही न्यूज में था. हर साल इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा. सो दिस इज अगेन PYQ का एस्पेक्ट. ये PYQ समझ के ही समझ आता है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं. ओके, पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. व्हेन यू अंडरस्टैंड द लास्ट 6 years PYQs पैटर्न ना, जब पढ़ोगे रिपीटेड टॉपिक दिखने लगेंगे आपकी आंखों को, समझ आ जाएगा कि भाई इतने मार्क्स तो हम सिक्योर कर सकते हैं. अब देखो 10 नंबर तो आपके फ्री के थे यहाँ पर. इफ यू हैव स्टडीड इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ टू मिटिगेट इन्फ्लेशन, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज RBI क्रिएट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ओके, टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, क्या टारगेट्स है RBI के इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से. सो ऑल दीज थिंग्स, प्लस मिलेट एज अ सुपर ग्रेन, इसको सुपर फूड, सुपर ग्रेन भी बोला जाता है. एंड इट हैज बीन इन न्यूज, इंटरनेशनल मिलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. तो ये न्यूज में था, आपको ये भी पढ़ना था, समझना था. ठीक है, सुपर फूड का रोल. अब मुझे कैसे पता है सुपर फूड, क्योंकि ये ना ट्विटर पे काफी फेमस हो रहा था अबाउट इट. A lot of big ministries and ministers and personalities were writing about millet. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप देखो, अगेन ये PYQ का रिपीटेड थीम है. मैंने आपको PYQ के ही कितने क्वेश्चंस दिखा दिया यहाँ पर, जस्ट सी फॉर योरसेल्फ. ओके, उड़ान स्कीम, करंट अफेयर्स. ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया ये अक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीमेटिक यहाँ पर आप देखोगे, थीम, रिपीटेटिव थीम देखोगे. बफर स्टॉक्स, ये डायरेक्टली सिलेबस से उठाया गया है. इन ऑल माई वीडियोज आई आस्क यू टू स्टडी द सिलेबस ऑल्सो. सिलेबस में जो टर्म्स दे रखे हैं ना, फूड प्रोसेसिंग, बफर स्टॉक्स, एग्रीकल्चर, लेबर कोड, वहीं से देखो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, उसी सेंटेंस, उसी वर्ड को उठा के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं. दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. लेबर कोड्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. डिजास्टर रेजिलियंस, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये थीम है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू द थीम. फ्लैश फ्लड्स पढ़ते हो, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. ओवर यूसेज ऑफ द वीक यूसेज ऑफ ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है. ऑल ऑफ दीज इशूज, दीज हैव बीन टेकन, द थीम हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को समझना है. अभी रिसेंटली टेलीग्राम वाज इन न्यूज़ कि टेलीग्राम के फाउंडर को ही हैज़ बीन पुट बिहाइंड द बार, राइट. तो इंक्रिप्शन, सोशल मीडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस, हाउ सेफ योर मैसेजेस आर, एवरीथिंग वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट, राइट.
और क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो आप यहाँ पर। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बीइंग अवेयर अबाउट द न्यूज विच इज गोइंग ऑन अराउंड यू। यही है उसका इम्पैक्ट, इसीलिए मैं बोलती हूँ ये पढ़ना करंट अफेयर्स से थोड़ा सा क्लोज रहना जरूरी होता है, बिकॉज हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन मेंस कैन बी इजीली सॉल्व थ्रू करंट अफेयर्स ओनली, and the proof is in front of you. I will come up with specific explanation of PYQs, linking it with this year's question paper and the DMQs that I gave, and the proper explanation of the sources from where they have been taken. यहाँ पर मैंने आपको concrete sources बता दिए हैं, in depth sources कि आप जब तैयारी शुरू करो या तैयारी कर रहे हो तो और कौन से sources include करने चाहिए. Very soon I'll be coming up with a strategy session on economy also. Okay. ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद लाइव आंसर राइटिंग. अब आपका ना होमवर्क है. आई हैव गिवन यू अ फ्रेमवर्क ऑन दिस क्वेश्चन व्हाट आर एस्टेरॉइड्स. आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट द आंसर, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. In the comment section, tell me the time taken by you to attempt this particular question of 15 marks, and then get it evaluated by Super Kalam. सुपर कलाम से superkalam.com/chat पे आप जाओगे, वहां जाके इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करा के अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अलॉन्ग विद द टाइम टेकन टू राइट द आंसर. ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन. कोई भी डाउट्स आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और यू कैन मेल मी एट ask@kalam.in. I will clear all your doubts. Bye everyone, take care. Let's